Hey guys, this is me Kinshuk and you are watching my YouTube channel Wealth Wizards. So इस वीडियो में हम सीखेंगे about RSI, that is a very useful indicator that will help you in your trading and investment journey. So if you are someone who is a beginner in stock market, then you can learn this strategy and ये एक बहुत ही powerful indicator है which indicates the momentum in the stock कि किसी भी stock में या index में क्या momentum है, whether it is going to go up, down, sideways. So that information is given by this indicator, that is RSI. Okay, so let me start with the video. Before that, if you have not subscribed to my channel, so do subscribe and press the bell icon so that you don't miss any notifications. So RSI को देखते हैं, ठीक है. उसके बाद I will also show you some live charts जहाँ पे I will tell you how you can plot this indicator and what levels you should use if you want to make the maximum use out of this indicator. ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये relative strength index है क्या. It is a momentum indicator which indicates momentum in the stock. Now we have different type of indicators. जैसे volatility indicator होता है, जैसे Bollinger Band we use. If you already know about it, you must know that it is a volatility indicator जो बताता है कि market में कितनी volatility है, या किसी particular stock पे अगर आपने वो indicator लगाया Bollinger Bands तो it tells you about the volatility. Similarly, RSI is a momentum indicator. तो ये क्या बताएगा? Momentum in the index or stock. Momentum मतलब speed, कि कोई stock है वो कितनी तेजी से ऊपर जा रहा है, कितनी तेजी से नीचे जा रहा है. ओके, तो that is a momentum indicator. Second thing, it is a banded oscillator which moves in the range of 0 to 100. तो ये हमेशा 0 से 100 की रेंज में होगा. ओके, so 0 being the lowest level and 100 being the highest level. Okay, now if you already know about RSI, you must be using different levels like 70-30, 80-20, and there is no fixed approach. Okay, so many people might prefer to use their 70-30 level, some might prefer to use 80-20 level, but according to me, I would suggest you that you use this unconventional RSI approach which makes use of 60 and 40 levels as critical levels. ठीक है, तो किसी भी सॉफ्टवेयर में आप RSI लगाओगे, यू कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड यू कैन चेंज दैट टू 60 and 40. Okay, I will show you just in a moment how you can do that. So this is the basic principle of RSI that you can say RSI above 60 indicates bullish. अगर RSI 60 के ऊपर है that means bullish. Okay, if RSI is below 40 that indicates bearish, मार्केट डाउन है या स्टॉक डाउन है. और RSI अगर 40-60 के बीच में है, इफ़ RSI इज़ बिटवीन 40 and 60 दैट इंडिकेट्स साइडवेज, तो वो स्टॉक साइडवेज है या इंडेक्स साइडवेज है. ठीक है, अब इसमें भी RSI अगर अबव 60 है एंड द स्लोप इज़ अपवर्ड्स तो इट इज़ स्ट्रांगली बुलिश, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है उस स्टॉक में, राइट. एंड इफ़ इट इज़ बिलो 40 एंड द स्लोप इज़ डाउन, ओके, स्लोप उसका डाउनवर्ड्स है, इट इज़ गोइंग फर्दर डाउन, तो दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेयरिश. तो वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन है. तो हमें क्या करना है, हाउ वी कैन मेक यूज़ ऑफ दिस RSI. सो RSI अगर अबव 60 है बुलिश मतलब बाई, बिलो 40 बेयरिश मतलब सेल या शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो, बिटवीन 40-60 तो दैट इज़ साइडवेज, दैट स्टॉक इज़ साइडवेज. ओके, इसका मतलब साइडवेज का मतलब यू कैन अवॉइड, या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग कर सकते हो, मीन्स यू कैन बाई एट 40 एंड सेल एट 60. ठीक है, एंड ऑप्शंस में भी कर सकते हैं इसको, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई करके कि RSI अगर अबव 60 है तो यू कैन बाई कॉल्स. ओके, RSI बिलो 40 है तो बाई पुट्स, तो ये ऑप्शन बाइंग हो गया. एंड व्हेन RSI इज़ बिटवीन 40 and 60 तो हम ऑप्शन को राइट कर सकते हैं. जैसे अगर वो 60 पे है, 60 पे देर इज़ रेजिस्टेंस, देन वी कैन सेल कॉल, एंड अगर वो 40 पे सपोर्ट ले रहा है देन वी कैन बाई पुट. ओके, so maybe I will make a separate video on options where I'll talk about this, but in this video we are going to learn this simple strategy that is RSI and how we can use that. Okay, now let's go to the next slide. So यहाँ पे निफ्टी का चार्ट है. अब now I'm going to show you how you can make use of this strategy to make your buying or selling decisions. तो सबसे पहले ये चार्ट है, राइट, दिस इज़ द कैंडलस्टिक पैटर्न. ये मंथली टाइम फ्रेम है, सो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो. ओके, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, मे बी यू कैन अप्लाई दिस ऑन मंथली और वीकली चार्ट. अगर थोड़ा स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है तो मे बी डेली एंड वीकली चार्ट आप देख सकते हो.
एंड इंट्राडे करना है तो मे बी 15 मिनट चार्ट और आवरली चार्ट। ओके, सो किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके राइट, सो ये हमारा निफ्टी का चार्ट है एंड यू सी दिस इज़ द मंथली चार्ट। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इस पे मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, दिस इज़ द वॉल्यूम एंड दिस इज़ द RSI। सो दिस इज़ द बेसिक ट्रेडिंग सेटअप दैट आई यूज़। तो कितने इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे? एक मूविंग एवरेज है। नाउ देर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस, 20 डेज का मूविंग एवरेज, देन 50 डेज का मूविंग एवरेज, देन 100 डेज का मूविंग एवरेज एंड 200 डेज का मूविंग एवरेज, राइट। तो ये एक इंडिकेटर हो गया मूविंग एवरेज, एक ये इंडिकेटर हो गया दैट इज RSI एंड एक ये वॉल्यूम, दैट्स इट। ठीक है, बाकी आप इस पर ट्रेंड लाइन्स एंड ऑल ड्रॉ कर सकते हो, बट दिस इज द मिनिमम सेटअप दैट यू नीड फॉर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस। ओके, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न तो है ही, राइट। सो इस वीडियो में हम RSI के बारे में सीखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो मे बी आई विल टीच यू अबाउट दिस मूविंग एवरेजेस, और उसके बाद एक वीडियो में हम वॉल्यूम के बारे में देख सकते हैं, राइट। सो सी यहाँ पे RSI, नाउ जस्ट सी दिस स्लाइड। सो RSI अबव 60, जब भी RSI अबव 60 है दैट मीन्स बुलिश। तो एक सिंपल स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज़ वेन एवर RSI क्रॉसेज दिस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा क्रॉस किया बट इट वॉज नॉट एबल टू क्रॉस डिसाइसिवली, फिर हल्का सा डिप आया एंड देन इट क्रॉस्ड, और यहाँ पे स्लोप भी कैसा है? अपवर्ड्स। तो मैंने बोला RSI अगर अबव 60 है एंड इसका स्लोप अपवर्ड्स है, ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, दैट मीन्स देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ओके, तो यहाँ पे आप देखो एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सो सिंपली जब RSI 60 क्रॉस करता है, ओके, देन यू कैन बाई एट दैट लेवल एंड यू कैन होल्ड टिल इट क्रॉसेज बिलो दिस 60, क्योंकि 60 के नीचे गया तो 60 एंड 40 के बीच में इट विल बी साइडवेज जनरली। नाउ दिस इज़ नॉट ए रूल, ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है, बट इन जनरल अगर 40-60 के बीच में है तो इट विल बी साइडवेज ओनली, राइट। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये सीधे 40 को क्रॉस कर दे। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि 60 के नीचे गया तो इट इज़ साइडवेज ओनली, इट कैन कीप गोइंग डाउन एंड ब्रेक दिस 40 लेवल ऑल्सो, राइट। तो 40 को ब्रेक किया तो कन्फर्मेशन हो जाएगा कि नाउ मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड, या ये स्टॉक, दिस पर्टिकुलर स्टॉक, यहाँ तो ये निफ्टी का चार्ट है, सो दिस निफ्टी इंडेक्स इज स्ट्रॉन्ग बेयरिश अगर ये 40 को ब्रेक करता है तो, ठीक है। तो सिंपली हमें 60 क्रॉस करने पे बाई करना है एंड तब तक होल्ड करना है जब तक ये 60 को वापस ब्रेक न कर दे, बिकॉज टिल द टाइम द RSI इज अबव 60 दैट इंडिकेट्स कि मोमेंटम है इसमें एंड इट इज़ अ बुलिश सिग्नल, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बाई किया समवेयर एंड जब इसने 60 को ब्रेक किया तो यहाँ पे सेल कर दिया, राइट। नाउ यहाँ पे दिस माइट अपीयर टू बी अ स्मॉल मूव, बट इफ़ यू सी द कैंडल हियर, सो दिस इज़ अराउंड आई बिलीव 6000 एंड दिस कैंडल इज़ अराउंड 8000, तो 2000 पॉइंट्स का मूव आपको मिला सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ RSI, ठीक है। अब इसने 60 को ब्रेक कर दिया तो अभी हमें इससे एग्जिट कर देना है, ठीक है। नाउ इसको तब तक नहीं देखेंगे जब तक ये दोबारा से 60 को क्रॉस ना करे। अगेन RSI ने 60 को क्रॉस किया एंड यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। सो अगेन यू कैन एंटर एट दिस लेवल एंड टिल द टाइम इट इज़ अबव 60 यू कैन होल्ड योर पोजीशन, और जैसे ही इसने 60 को ब्रेक किया तो यू कैन एग्जिट। अगेन यहाँ पे देखो आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला, यहाँ पे इसने RSI 60 को क्रॉस किया एट दिस लेवल एंड यू सी देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अब यहाँ पे आप बाई और सेल सिग्नल भी देख सकते हो। सो दिस इज बजाज फाइनेंस का चार्ट, 1 वीक का चार्ट है, ओके। अगेन वी हैव द सेम सेटअप, दिस इज द कैंडलस्टिक पैटर्न, मूविंग एवरेजेस, वॉल्यूम एंड RSI। यहाँ पे आप देखो 60 को क्रॉस किया, आई कैन जूम दिस अ लिटिल बिट, ओके, 60 को क्रॉस किया, यू सी देयर इज एन अप ट्रेंड। अगेन जब RSI 60 को यहाँ पे क्रॉस किया सो देयर इज एन अप ट्रेंड एंड अगेन यहाँ पे RSI ने 60 को क्रॉस किया। तो व्हाट इज़ आवर स्ट्रैटेजी कि जब भी 60 क्रॉस करता है तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी, राइट। अगर मार्केट बुलिश है तो ग्रीन कैंडल बनेगी, तो इसको हम बोलेंगे अलर्ट कैंडल, और आपको इस अलर्ट कैंडल पे भी बाई कर सकते हो या कंफर्मेशन के बाद, मतलब इसका हाई जब ब्रेक होता है तब आप बाई कर सकते हो, इसके हाई के ऊपर, ठीक है। सो इसका ये क्लोजिंग प्राइस होगा, इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो। सिमिलरली जब इसने 60 को तोड़ दिया, सो टिल द टाइम द RSI इज अबव 60 यू कैन राइड ऑन दिस मोमेंटम, और एक बार जब इसने 60 लेवल को तोड़ दिया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, सो यू कैन सेल एट दिस लेवल। तो यहाँ पे बाई किया एंड यहाँ पे सेल किया, ओके। सो इसके बाद भी स्टिल इट गॉन अप, बट
अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटेजी अगर ये 60 को ब्रेक करता है देन वी कैन एग्जिट, ओके, टू बी ऑन द सेफ साइड। या आप थोड़ा नीचे भी स्टॉप लॉस ले सकते हो, बट इफ़ यू वांट टू प्ले सेफ देन सिंपली 60 क्रॉस करने पे बाई करना है, और 60 वापस इसने ब्रेक कर दिया तो यू कैन सेल। अब यहाँ पे नाउ इफ़ यू आर मोर एक्सपीरियंस ट्रेडर देन यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग कि अभी हम इमीडिएटली सेल नहीं करेंगे, ओके। यहाँ पे इसने 60 को ब्रेक किया एंड इट गॉन बिलो 60, बट वी कैन ऑल्सो पुट द स्टॉप लॉस बिकॉज ये एक मूविंग एवरेज है। आई गेस दिस इज़ 50 डे का मूविंग एवरेज, येस दिस इज़ 50 डे का मूविंग एवरेज। तो हम वेट करेंगे कि अगर ये 50 डे के मूविंग एवरेज, बिकॉज दिस ऑल मूविंग एवरेज विल एक्ट एज अ सपोर्ट, तो अगर ये 50 डे के मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है देन वी विल सेल, अदरवाइज वी विल कीप होल्डिंग। तो वो थोड़ा सा एडवांस्ड हो गया, ओके। एंड दिस विल कम बाय प्रैक्टिस कि आपको दिख रहा है कि 60 ब्रेक किया, बट यहाँ पे एक सपोर्ट भी है, मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो यू कैन स्टिल होल्ड ऑन टू दिस। एंड उसके बाद आपको एक और रैली देखने को मिली, राइट। सो दिस वॉज व्हेन द RSI इज अबव 60, दैट मीन्स वी कैन बाई, ओके। सिमिलरली इसका उल्टा हो सकता है जब RSI 40 को ब्रेक करता है, 40 के नीचे जाता है। सो इफ़ वी गो बैक टू अवर स्लाइड, सो RSI बिलो 40 मतलब बेरिश, तो वहाँ पे क्या करना है, सेल करना है। तो या तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ओके। सो शॉर्ट सेलिंग बेसिकली हम सेल करते हैं एंड देन बाई करते हैं, सो दैट इज़ शॉर्ट सेलिंग, बट वो नॉर्मल इक्विटी में आप नहीं कर सकते हो। उसके लिए यू कैन डू आइदर इंट्राडे और इन डेरिवेटिव्स मार्केट, दैट इज़ इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो वो थोड़ा एडवांस्ड चीज़ है विच मे बी वी विल टॉक लेटर। बट यहाँ पे क्या है कि एक बार लेट से आपकी होल्डिंग है येस बैंक में, तो एक बार इसने RSI ने 40 लेवल ब्रेक किया तो बिना कुछ सोचे समझे यू हैव टू एग्जिट, ओके। नाउ डोंट वेट, नो मैटर आप लॉस में भी हो, बट जस्ट एग्जिट अगर ये RSI 40 को ब्रेक करता है। बिकॉज अगर आपने यहाँ पे सेल नहीं किया, ओके, लेट से आपने थोड़ा ऊपर लिया था और यहाँ पे इसने RSI ने 40 को ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्लियर कट साइन था एंड यू सी मूविंग एवरेजेस भी ब्रेक हुए एंड यू सी दिस गैप डाउन ओपनिंग, एक बड़ी सी रेड कैंडल, रेड वॉल्यूम, सो बहुत सारे यहाँ पे रेड फ्लैग्स हैं, राइट। बट मेनली अगर हम खाली RSI देखें तो RSI भी ये बोल रहा है कि 40 के नीचे मतलब बेरिश, मतलब सेल। तो अगर आपने यहाँ नहीं बेचा, ओके, एट दिस लेवल, देन यू सी कि उसके बाद द रेस्ट इज़ हिस्ट्री एंड येस बैंक इज़ नाउ इन डबल डिजिट्स ओनली। एक टाइम पे इसने हाई लगाया था 400 का एंड अभी इसका प्राइस है 24 रुपये, ओके। सो दिस इज़ सिंपल टेक्निकल एनालिसिस, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कट सिग्नल मिल रहा है कि इस स्टॉक में कुछ तो गड़बड़ है, ओके। RSI बिलो 40 मतलब इट इज़ गोइंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपको सेल कर देना है, ओके। सो आई रिमेंबर मेरे एक फ्रेंड के पास येस बैंक था और इसी एनालिसिस के बेसिस पे आई टोल्ड हिम, आई थिंक इट वाज बैक इन 2019 और अर्ली 2020, तो मैंने उसको बोला कि भाई येस बैंक बेच दो, अभी चार्ट पे इट्स नॉट लुकिंग गुड, बट ही सेड कि अभी थोड़ा और सस्ता हो गया है तो लेट्स कीप होल्डिंग। और उसके बाद इट फर्दर वेंट डाउन टू 20 रुपीज़, 20-30 रुपीज़। सो जस्ट फॉलो द बेसिक रूल्स कि अबव 60 है तो बुलिश है, बिटवीन 40-60 है तो साइडवेज है एंड बिलो 40 तो बेरिश। तो वेन एवर द RSI क्रॉसेज दिस 40 लेवल, सो यू शुड इमीडिएटली सेल इफ़ यू आर हैविंग पोजीशन इन दैट स्टॉक और इंडेक्स, ठीक है। उसके अलावा आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हो, जैसा मैंने बोला, जैसे ऑप्शंस में हम पुट बाई कर सकते हैं जब RSI 40 के नीचे जाता है तो, ओके। दैट मीन्स वी आर प्रेडिक्टिंग कि मार्केट नीचे जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो और भी रेड फ्लैग्स थे, नॉट ओनली RSI, इसने मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया। यू कैन सी दैट रेड कैंडल्स, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड यू सी द वॉल्यूम ऑल्सो रेड बार्स, ओके। सो मतलब यहाँ पे देर वॉज ह्यूज सेलिंग प्रेशर, राइट। सो यूजिंग ऑल दीज इंडिकेटर्स यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने लायक है, यू सी हियर द स्टॉक हैज़ क्रॉस्ड दिस 60 लेवल, इसने 60 को क्रॉस किया, सपोर्ट लिया 60 पे एंड अभी ये 60 के ऊपर है। सो हमारा ये जो रूल है वो क्या, सो अगेन दिस इज़ नॉट ए रूल, ओके। बेसिकली स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में कोई रूल नहीं है, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मतलब RSI अगर 60 के ऊपर है मतलब बुलिश होने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसा 100% नहीं है कि 60 के ऊपर गया तो एवरी टाइम इट विल बी बुलिश, राइट।
तो यहाँ पे आप देखो, सो 60 के ऊपर है अभी, राइट। सो यू विल से कि 60 के ऊपर है तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं, बट वी विल नॉट ट्रेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ RSI। ओके, RSI इज़ वन इंडिकेटर, बट उसके अलावा और भी इंडिकेटर्स देखने हैं। अगर हम यहाँ लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखें तो इट इज़ इन डाउन ट्रेंड, और इसने अभी मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं किया। ओके, सो बेसिकली ये वाली जो लाइन है, पिंक लाइन, सो इफ़ आई जूम दिस अ लिटिल बिट, दिस इज़ 200 EMA। तो ये जो स्टॉक प्राइस है, इट इज़ स्टिल बिलो दिस 200 EMA। तो जब ये 200 EMA को क्रॉस करेगा, देन वी कैन थिंक ऑफ बाइंग। ओके, एंड मे बी फॉर शॉर्ट टर्म, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इसका ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। ओके, सो मे बी आप डेली चार्ट पे देखो तो यू विल फाइंड सम मोमेंटम, बट लॉन्ग टर्म में स्टिल इट इज़ इन डाउन ट्रेंड। तो अगर मुझे लॉन्ग टर्म में बाई करना है तो आई विल नेवर पिक येस बैंक। ओके, सो दिस वॉज अबाउट येस बैंक। तो ऐसे अगर ये 40 को ब्रेक करता है, विच मीन्स बेरिश साइन, एंड वहाँ पे यू कैन सेल। ओके, एंड सेम चीज़ ये वीकली टाइम फ्रेम था, सेम चीज़ अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि अगेन इट हैज़ ब्रोकन दिस 40 लेवल। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हो। नॉर्मली होता क्या है कि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो इट विल गिव द सिग्नल अर्ली, बट समटाइम्स दोनों टाइम फ्रेम्स पे, लोअर टाइम फ्रेम एज वेल एज हायर टाइम फ्रेम पे आपको सेम टाइम पे सिग्नल मिलेगा। जैसे इस केस में आई थिंक इट वाज इन अप्रैल 2019 व्हेन दिस RSI क्रॉस्ड बिलो दिस 40 लेवल ऑन वीकली चार्ट, एंड अराउंड द सेम टाइम ये मंथली चार्ट पे भी, मंथली टाइम फ्रेम पे भी इसने 40 को ब्रेक किया। तो मंथली टाइम फ्रेम में भी आप देखो, यू विल गेट द सेम सिग्नल कि 40 को ब्रेक कर रहा है, रेड कैंडल बन रही है। ठीक है, सिंपली हमें क्या करना है, सेल करना है इफ़ यू आर हैविंग एनी पोजीशन, राइट। तो ये हो गया RSI अबव 60 और RSI बिलो 40। इसके अलावा एक और कंडीशन हो सकती है कि साइडवेज मार्केट। तो मार्केट या तो अप ट्रेंड में होगा, या डाउन ट्रेंड में होगा, या साइडवेज होगा, राइट। यही 3 पॉसिबिलिटी है। तो RSI अगर 40-60 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, सो एज आई टोल्ड दैट दिस इज़ अ बैंडेड ऑसिलेटर, ये 0 से 100 के बीच में ऑसिलेट करेगा, राइट। तो अगर ये 40-60 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, देन दिस इज़ अ साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पे हमें या तो अवॉइड करना है इफ़ यू आर अ बिगिनर, या अगर आप एक्सपर्ट हो तो यू कैन डू सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। जैसे सपोर्ट पे आपने बाई किया, मतलब 40 पे बाई किया, 60 पे सेल किया, और यू कैन डू ऑप्शंस राइटिंग। ठीक है, सो साइडवेज मार्केट आप देखो, यहाँ पे ITC का चार्ट है, दिस इज़ डेली टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पे जो मेरा लेज़र पॉइंटर है, इसके बाद से इट इज़ ऑलमोस्ट साइडवेज। थोड़ा नीचे गया देन ऊपर आया, देन थोड़ा नीचे गया देन ऊपर आया। सो यहाँ पे भी सेम प्राइस में था। सो इट वॉज आई थिंक इट 2000, आई डोंट नो, मे बी 2018, और इसके 1 या 2 साल बाद स्टिल इट इज़ एट द सेम लेवल। तो इन 2 साल में मार्केट कहीं नहीं गया, इट वॉज साइडवेज। तो यहाँ पे अगर आप RSI का लेवल देखो, राइट, फ्रॉम हियर, सो यू सी ये 40-60 के रेंज में ही काम कर रहा है टिल हियर। ओके, सो बीच में 40 के नीचे गया फॉर सम स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, अगेन ये 40-60 के रेंज में आ गया, फिर इसने 60 को ब्रेक किया, बट अगेन ये नीचे आ गया 40-60 के रेंज में, राइट। सो अराउंड 70-75% ऑफ दिस टाइम ड्यूरेशन दिस RSI इज ऑसिलेटिंग बिटवीन 40 एंड 60 रेंज। तो जब ये 40-60 के बीच में है, देन दैट मीन्स साइडवेज मार्केट। ओके, सो ये हो गया हमारा साइडवेज मार्केट का एग्जाम्पल व्हेन RSI इज बिटवीन 40 एंड 60। ओके, नाउ लेट मी शो यू हाउ यू कैन put this RSI on any software that you are using. So normally I recommend that you use this in.investing.com. okay, so यहाँ पे आप जाओगे, so indicators, okay, यहाँ पे just put RSI and you will get this relative strength index. तो मैंने already plot किया हुआ है, you will get like this. Now आपको क्या करना है, आपको इसका level change करना है, so you have to make this 40-60, right, that is the unconventional RSI. So just click on this settings, and here normally by default I think it will be 70-30, so you can change this to 60 and 40. click on OK, तो ये आपको मिल गया RSI. Similarly most of the people are using this kite platform of Zerodha. So personally मुझे ये उतना पसंद नहीं है for chart analysis. Normally I do trading through Zerodha only, but chart analysis के लिए I don't find this very user friendly. But still अगर आप ये kite platform use कर रहे हो तो यहाँ पे भी आप RSI इंडिकेटर लगा सकते हो. ओके, सो आई गेस यू कैन गो टू
स्टडीज़, हाँ स्टडीज़, एंड यहाँ पे मैंने RSI ऑलरेडी लगा रखा है। आप सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे, यू विल गेट दिस RSI, और यहाँ से अगेन आप इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। सो मैंने 40-60 ऑलरेडी लगा रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेटिंग्स पे एंड यू कैन चेंज दिस। ओके, अब जैसे ये चार्ट खुला है 15 मिनट का, तो 15 मिनट पे हमें RSI क्या दिख रहा है कि अबव 60, और इसने यहाँ पे 60 पे सपोर्ट भी लिया। सो मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम में रिलायंस इज़ हाईली बुलिश, 60 को क्रॉस किया और फिर 60 पे सपोर्ट भी लिया। सो दिस इज सेइंग कि 60 के नीचे नहीं जा रहा है। दिस RSI इज टेलिंग दैट कि ये 60 के नीचे नहीं जा रहा है। तो अगर यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, सो दिस फर्दर इंडिकेट्स कि इट इज़ गोइंग टू गो अप। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट हो गया। तो मे बी अगर आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग डे इंट्राडे करना है तो यू कैन लुक एट बाइंग दिस। ओके, अगर आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए करना है, बट लेट्स से आई गो टू द वीकली चार्ट, वीकली पे भी इट इज़ अबव 60, सो दैट इज़ गुड। सो इवन आपको शॉर्ट टर्म भी करना है, बट आपको लॉन्ग टर्म का भी व्यू देखना पड़ेगा, राइट। सो वीकली पे क्या है, मंथली पे क्या है, एंड यू सी मंथली पे जस्ट इसने अभी RSI 60 को क्रॉस किया है। ओके, सो लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी इट इज़ बुलिश, राइट। एंड डेली पे भी देख लेते हैं, डेली पे भी 60 पे रेजिस्टेंस, बट इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, वीकली पे इट इज़ अबव 60, ओके, एंड मंथली पे इट इज़ अबव 60। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो शॉर्टर टाइम फ्रेम होता है दैट विल फॉलो द लॉन्गर टाइम फ्रेम, तो ये डेली भी 60 को क्रॉस करेगा। ओके, सो ऐसे आप RSI का यूज़ कर सकते हो। नाउ ये निफ्टी का चार्ट है, अगेन यहाँ पे आप देखो 60 को क्रॉस किया RSI ने, सो यहाँ पे एक अप ट्रेंड मिला, अगेन 60 को क्रॉस किया अप ट्रेंड, अगेन यहाँ पे आप एरो देख सकते हो 60 को क्रॉस किया, सो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, राइट। तो सिंपल क्या करना है कि जब ये RSI 60 को क्रॉस करता है तो बाई, एंड तब तक होल्ड करना है जब तक ये 60 को ब्रेक ना करे, राइट। तो 60 को अगर ब्रेक करता है तो यू कैन एग्जिट एंड स्टिल यू कैन अर्न a good decent amount of money if you follow this simple strategy। okay, सेम चीज़ वीकली पे भी दिखेगा आपको। ओके, लेट मी जूम आउट अ लिटिल बिट। सो यहाँ पे 60 के ऊपर अप ट्रेंड, अगेन 60 के ऊपर अप ट्रेंड, यहाँ अगेन 60 को क्रॉस किया, यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिखेगा, राइट। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो अभी पिछले कुछ दिनों से मार्केट थोड़ा डाउन है, एंड बट धीरे धीरे मोमेंटम आ रहा है। सो इट वाज अ काइंड ऑफ करेक्शन आई बिलीव, ऐसा कोई क्रैश वैश नहीं आने वाला है। आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 28 जैन, तो थोड़ा सा करेक्शन था मार्केट में, बट अभी इट्स लुकिंग गुड, ऐसा कोई क्रैश या ऐसा कुछ नहीं आने वाला है जैसा बहुत लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो यू डोंट नीड टू बी वरीड, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा सा आई एम कंसर्न्ड। आई विल टेल यू द रीज़न। यहाँ पे आप देखो कि मंथली चार्ट है एंड ये 60 के नीचे आ गया, करेक्ट, 60 के नीचे आ गया, विच मीन्स कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न है। और यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल भी दिखेगी मंथली चार्ट पे, राइट। एंड इसके बाद अगर हम वीकली पे जाएं तो वीकली पे आप देखो इसने 60 को ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ओके, एंड ये 40-60 के बीच में, मतलब साइडवेज, बट ये स्लोप इसका क्या है, डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे मतलब मार्केट का जनरल डायरेक्शन, सॉरी बैंक निफ्टी का जनरल डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड्स, राइट। तो ये साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में रह सकता है। डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे देयर इज़ अ कंसर्न। सी यहाँ पे 60 के ऊपर था, ओके, इसने 40 को ब्रेक किया और फिर 40 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस आया। इफ़ आई जूम दिस, तो यहाँ तक तो ठीक है, 60 के ऊपर था, 60 को ब्रेक किया तो ठीक है, साइडवेज टू डाउन ट्रेंड। 40 को ब्रेक किया मतलब ये डाउन ट्रेंड, और यहाँ 40 को ब्रेक करने के बाद इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लिया, इट इज़ नॉट एबल टू क्रॉस दिस 40 और फिर से ये नीचे आ गया, विच मीन्स देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम इन बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि वी शुड नॉट मेक एनी फ्रेश पोजिशंस, या जो होल्डिंग्स हैं आपके पास, सो यू कैन कंसिडर सेलिंग दैट इंस्टेड ऑफ बाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, ऑल्दो इसने सपोर्ट लिया है मूविंग एवरेज पे, राइट। यू सी 200 EMA का 200 EMA है ये, और ये इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, बट स्टिल RSI बोल रहे हैं बिलो 40, तो इट इज़ इन डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल करने का सोच सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग की सोच सकते हैं, बट वी विल नॉट बाई हियर, ओके।
तो ये हमको एक ओवरऑल ट्रेंड बताएगा कि सिंस द RSI इज़ बिलो 40 सो बैंक निफ्टी इज़ इन डाउन ट्रेंड, तो हमें सेल करना है, बाई नहीं करना है, राइट। एंड लेट्स गो टू वन टाइम फ्रेम लोअर, लेट्स गो टू आवरली चार्ट। तो आवरली पे आप देखो इसने गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसने मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेक कर दिया। यहाँ पे 40 ब्रेक हुआ था, थोड़ा सा ये ऊपर आया, अगेन इसने ब्रेक किया, 2 बार 40 पे रेजिस्टेंस लिया, 40 को क्रॉस किया, बट अभी भी 40 to 60 के बीच में है। सो जब तक ये 60 को क्रॉस नहीं करता है इवन ऑन शॉर्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और ये आप देख सकते हो कि सारे मूविंग एवरेजेस को इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे गैप डाउन हुआ, दिस वाज द लेवल, और इसके बाद 17 जैन को गैप डाउन ओपनिंग हुई। सो दिस वाज 48,000 और ये ओपन हुआ, व्हाट वाज दिस लेवल, 46,000, मतलब ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट नीचे। सो ये बहुत एक सीरियस कंसर्न है। एंड RSI भी जैसा हमने देखा डेली चार्ट पे कि इट इज़ बिलो 40 एंड यहाँ पे 40 पे रेजिस्टेंस लिया, मतलब एक रेंज शिफ्ट भी है कि यहाँ से यहाँ तक बुलिश था पहले जब ये अबव 60 था, नीचे आया, 40 को क्रॉस किया एंड 40 पे रेजिस्टेंस लिया। सो दिस इज़ बेरिश रेंज शिफ्ट। सो यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड इन दिस बैंक निफ्टी एंड यहाँ पे सेलर्स डोमिनेंट है, राइट। सो इन दिस वे यू कैन मेक यूज़ ऑफ दिस indicator. Just make sure that you are using this 60-40 level and just remember this golden rule of thumb कि RSI above 60 bullish मतलब buy कर सकते हैं, between 40 to 60 sideways मतलब avoid, and below 40 है तो bearish मतलब sell कर सकते हैं। Now of course on top of this we need to use other indicators also, जैसे हमारा वॉल्यूम हो गया, मूविंग एवरेजेस हो गया, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं, ऑल दैट, ओके। सो होप यू लर्नड अ लॉट आउट ऑफ दिस वीडियो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि किस टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊँ। So maybe if you want that I make a video on other indicators like moving averages or volume, so I will make a separate video on that. So till then, please like, share, comment and subscribe, and I will see you guys in the next video. Till then, bye.